ओके, टेन ई और एफ दोनों को कंबाइंड रूप से हम आज वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया इन क्लास 10, इसके लिए आपको क्लास 9 का जो भी फॉर्मूला है उसको आपको याद रखना है। क्लास 9 में आपने जो भी पढ़ा है उस सबको, सारे फॉर्मूला, ऑल फॉर्मूला का यहाँ यूज है। क्लास 9 में हम लोग वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में, क्लास 9 में हम लोग वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में जो भी फिगर पढ़े हैं उसी का हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। जैसे कि क्लास 9 में या उससे पहले क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा है क्यूबाइड। दिस इज क्यूबाइड। इस क्यूबाइड में लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, क्लासरूम में सबसे इजी वे में जो हमारे पास टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है वो है डस्टर। दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्यूबाइड, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो फर्स्ट ज्योमेट्रिकल फिगर क्यूबाइड। फर्स्ट ज्योमेट्रिकल फिगर क्यूबाइड। तो क्यूबाइड, इस क्यूबाइड में हम लोग फर्स्ट वी फाइंड lateral surface area. So lateral surface area means area of four sides. You know that each face of cuboid is rectangle, then each face area of each face L into B. इस फेस का एरिया निकालेंगे तो L into B, and this फेस का एरिया निकालेंगे तो L into B. तो LSA is equal to 4 फेस का एरिया, it means 2 L plus B into H. And second one TSA. TSA means, इसका कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, TSA means एरिया ऑफ ऑल सरफेस। जितना भी सरफेस आपको इसमें दिख रहा है सबका एरिया फाइंड कर दीजिएगा, वो हो जाएगा TSA। TSA means एरिया ऑफ ऑल सरफेस। इसमें 6 सरफेस है तो 6 फेस है, तो 6 फेस का एरिया आपको निकालना है। ये हो जाएगा 2, O फेस आइडेंटिकल है, L into B, B into H and H into L। ये आपको हो गया टोटल सरफेस एरिया। देन you find volume. Here we write only volume, means topic cuboid, then volume of cuboid, TSA of cuboid, LSA of cuboid। तो volume is equal to base area। क्यूबाइड का बेस क्या है? L into B और into हाइट, हाइट हो गया H, तो LBH। वॉल्यूम जो होगा वो क्यूबिक यूनिट। यू नो दैट वॉल्यूम क्यूबिक यूनिट एंड दिस इज द स्क्वायर यूनिट, SQ यूनिट। एंड नेक्स्ट area of four wall is equal to area of four wall equal to lateral surface area. It means 2L plus B into H। इसको हम बहुत ब्रीफ में, बहुत शॉर्ट में लेके चल रहे हैं क्योंकि आपको 9 में पढ़ा हुआ है। बस हम एक बार आपको रिवाइज करवा रहे हैं, बस एक बार आपको हम रिवाइज करवा रहे हैं। ये हो गया। एंड नेक्स्ट diagonal is equal to root under L square plus B square plus H square। L square plus B square plus H square। ये आपका हो गया क्यूबाइड। क्यूबाइड में ये 5 फॉर्मूला हम लोग याद रखते हैं। क्यूबाइड में ये 5 फॉर्मूला हम लोग याद रखते हैं।
It is clear? Any problem? Each face of No. yes. इसमें किसी को कोई दिक्कत है? No, sir. Okay. Next. Next, cube. Difference between cuboid and cube. Cuboid में length, breadth and height, but cube में only each edges are equal. Each face of cuboid is rectangle and each faces of cube is a square. Here, LSF is fourth area of four face. 4 into E square. E means edge of cuboid. TSA 6 edge square. At volume, edge into edge into edge. It means edge to the power 3. And diagonal is equal to root 3 edge. Figure must be this is a figure of cuboid and इससे पहले each face here is a square. Each face is a square. Then इससे पहले जो हम लोगों ने cuboid बनाया था this and each face of cuboid is rectangle. A rectangle है, ये भी देखिए rectangle है. Each face of cuboid is rectangle and each face of a square, each face of cube is a square. Then you are clear cube and cuboid. Next solid figure. Right circular cylinder. Right circular cylinder. Right circular cylinder. This is a figure of right circular cylinder. Two circular base. This is the shape of circle and this is also the shape of circle, and radius of circular base is called the radius of cylinder. This radius is both our radius are equal and this radius is called the radius of cylinder, and distance between both the center is called height of the cylinder h. Radius and height. First we find CSA. Here is topic right circular cylinder. It means CSA of right circular cylinder. CSA means curved surface area. Curved surface area means both end is not included. दोनों end, top and bottom, इसको हम लोग include नहीं करते हैं. अगर इसको हम explain कर देंगे इस तरह से, अगर हम 20 से काट करके explain कर देंगे, this is 2 pi r and this is h. ये 2 pi r हो जाएगा और ये h हो जाएगा. तो 2 pi r और h जब हो जाएगा तो CSA means क्या? Only this face का एरिया is 2 pi r. This is the length, this is the breadth. So 2 pi r h. CSA means 2 pi r h. CSA is equal to curved surface area 2 pi r h. And total surface area, this means CSA of cylinder plus area of two base, upper base, two ends, upper end and base.
So this is equal to 2 pi RH plus pi r square plus pi r square. It means 2 pi RH plus 2 pi r square. It means 2 pi r common h plus r. In this form we written. Next, volume. Volume means base area into height. Base is circular, then base area is pi r square. Pi r square into h. You know that volume is cubic unit and area is square unit. So this solid figure right circular cylinder. Okay. Next, figure is right circular cone, also known as cone. This is a figure of right circular cone, and this is radius, and distance between vertex and this center is called height, and distance between vertex and any point on this circle is called L. L is called silent height. Then L is equal to L square is equal to R square plus H square. Then we find L is equal to R square plus H square under root, and H is equal to root under L square minus R square, and R is equal to L square minus H square. This is the relation between L, R and H, and then we given by L and R we find H, given by L and H we find R, and so on. First we find CSA. CSA of cylinder is equal to pi RL, and PSA, CSA plus base area pi RL plus pi R square. Then we written pi RL plus R. And third one, volume, base area into height 1/3 pi R square H. This is the volume of cone. Right circular cone. Next figure. Next, a sphere. Next figure is a sphere. A sphere. Normally the figure is this. Surface area of a sphere is equal to 4 pi R square, and volume of a sphere 4/3 pi R cube. Next on hemisphere. Hemisphere. This is the figure of hemisphere. First, curved surface area of hemisphere 2 pi R square, and total surface area of hemisphere 3 pi R square, and volume of hemisphere 2/3 pi R cube. Cube, cuboid, cylinder, cone, sphere, hemisphere. इसको हम लोग
क्लास 9 में, क्लास 8 में पढ़े हैं, बार बार पढ़े हैं, फॉर्मूला डिराइव किए हैं, इसलिए यहाँ पे एकदम ब्रीफ, एकदम शॉर्ट में आपको एक बार सिर्फ रिवाइज करवा दिया गया, क्योंकि बिना इसके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्लास 10 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम नहीं बता सकते हैं, इसलिए हमने एकदम शॉर्ट में, अगर इसी चीज को अगर हम क्लास 8 या 9 में बताते तो वहां और डिटेल से बताते कि कैसे फाइंड हो रहा है। यहाँ पे बस हमने शॉर्ट में आपको एक बार याद करवा दिया है कि इसको हमको किस तरह, बिना इसके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट वी रिवाइज प्रीवियस फॉर्मूला, देन वी फाइंड अनदर फॉर्मूला। ओके, Sir, please side. Sir, please side. ओके, इरेज कर दे। Erase the blackboard. ब्लैकबोर्ड को इरेज कर दें, बॉयज एंड गर्ल्स। यस सर। ओके, अब आप इतना पढ़ने के बाद, इतना प्रीवियस नॉलेज लेने के बाद, आप अपने बुक का जो टॉपिक पढ़ना है वॉल्यूम सरफेस एरिया, उसके फर्स्ट पेज को ओपन कीजिए। इतना पढ़ने के बाद आप, हम लोग आपके टॉपिक यानी क्लास 10 में जो टॉपिक पढ़ना है उस पे आएंगे। आप अपने बुक एनसीईआरटी का जो बुक है उसका जो चैप्टर नेम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, चैप्टर 13, उसको आप ओपन कीजिए। जब आप ओपन कीजिएगा तो उसमें लिखा होगा कि इन क्लास 9 यू आर फेमिलियर विद द सम ऑफ द सॉलिड लाइक क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर एंड स्फीयर। उसका फिगर भी नीचे दिया हुआ, वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप क्लास 9 में सॉलिड फिगर के बारे, जस्ट लाइक क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, फेमिलियर हो चुके हैं, और वहां पर फिगर दिया हुआ है। उसके बाद उसके नीचे में एक फिगर दिया हुआ है और आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि एक किस तरह का फिगर है। वो एक टैंक का फिगर है जिसमें जनरली पेट्रोल या गैस ले जाया जाता है। तो उस फिगर को दिखा करके बताया गया एक इस फिगर को किस में रखेंगे, ना वो क्यूबॉइड है, ना वो कोन है, ना वो हेमिस्फीयर है, ना वो सिलेंडर है। फिर यहां से आपका टॉपिक शुरू होता है। तो ये आपका जो टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर, यानी वो जो फिगर आपको दिखाया हुआ है वो फिगर किसी में नहीं है जो आप 9 में पढ़े हैं। तो उस फिगर के बारे में जानने के लिए, उसका मेजरमेंट करने के लिए जो हम लोग पढ़ाई करेंगे वो है सरफेस एरिया ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ए सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। आप क्लास 10 में ही फर्स्ट टर्म में आप कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर पढ़ चुके हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर को प्लेन पे बनाना बहुत ही आसान होता है, सॉलिड फिगर में मुश्किल होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ इमेजिन करते हैं, अपने आप को समझाते हैं किस तरह से होता है। और सरफेस एरिया में ही ज्यादा प्रॉब्लम है, सरफेस वॉल्यूम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सरफेस एरिया में आपको इमेजिन करना पड़ेगा, जितना फेस दिख रहा है उसका एरिया आपको फाइंड करना है, जितना भी फेस दिख रहा है उसका एरिया आपको फाइंड करना है। अब जैसे कि आपको दिखा रहे थे, फर्स्ट कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर का, कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे, उसके आधार पर एक कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, इस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का हम फाइंड करेंगे सरफेस एरिया। फर्स्ट एग्जांपल, दिस इज सिलेंडर and 2 ends in a hemisphere. Then this type of figures, cylinder and 2 ends of hemisphere.
दिस इज हेमिस्फीयर, दिस इज हेमिस्फीयर एंड मिड वाला जो टॉपिक है ये आपका सिलेंडर है। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर और बीच में जो टॉपिक है वो सिलेंडर है। इसका जब हम लोग सरफेस एरिया निकालेंगे पीएसए ऑफ, इस तीनों को मिलने से जो न्यू सॉलिड बना पीएसए ऑफ सॉलिड, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, CSA of hemisphere plus CSA of cylinder plus CSA of hemisphere। यानी यहाँ पे हमको तीन चीज दिख रहा है, हेमिस्फीयर, सिलेंडर, हेमिस्फीयर। Then we find CSA of hemisphere plus CSA of cylinder plus CSA of hemisphere. It means CSA of hemisphere 2 pi r square, CSA of cylinder 2 pi r h and CSA of hemisphere 2 pi r square. ये आपका हो गया PSA of this solid, जिसको हम लोग टैंकर के रूप में देखते हैं। ये हो गया CSA of this solid। TSA of solid is equal to CSA of hemisphere, CSA of cylinder and CSA of hemisphere. Any problem? Boys and girls, any problem? प्रॉब्लम है तो बोलिए। हाँ, 10E में तो प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज जो आप लोग पढ़ चुके हैं। 10F से कोई बताइए। टेन एफ से कोई बताइए। 10E में तो प्रॉब्लम नहीं होगा, हमको पता है। 10F के जो स्टूडेंट है वो कोई हमको बताइए। टेन एफ ऐड हुआ है ना जी? स्टूडेंट ऑफ 10F, एनीवन स्पीक? No, sir. हिमांशु राज 10F का क्वेश्चन सर TSA और हेमिस्फीयर क्यों नहीं किए? TSA क्यों लेंगे? बीच वाला पोर्शन तो नहीं ना है। जब ये एक साथ कंबाइंड है तो ये पोर्शन तो नहीं ना है, ऊपर से रखा हुआ है ना, जो ऊपर से इस तरह से रखा हुआ है, यहाँ वाला पोर्शन नहीं है तो TSA क्यों लेंगे? CSA ही लेंगे ना। जितना फेस हमको लेना रहेगा उतना ही ना लेंगे। जब ऊपर वाला ले लेंगे तो पैक हो जाएगा, पैक थोड़ी करना है इसको। यहाँ पे तो खुला है। क्लियर? ऊपर से ऐसे रखा हुआ तो ऐसे सिर्फ बाहर वाला पोर्शन CSA ही ना दिख रहा है, TSA कहाँ दिख रहा है आपको? ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम तब होगा बेटा जब हम बोलेंगे कि दिस इज सिलेंडर एंड दिस फिगर, यानी हेमिस्फेरिकल पार्ट इधर से भी काट लिया गया है और हेमिस्फेरिकल पार्ट इधर से भी काट लिया गया है। और उसके बाद भी बोलेंगे कि हम लोग सेम फार्मूला यूज करेंगे, तो आप बोलिएगा व्हाई, क्यों? तो हम आपको इतना ही बता पाएंगे कि क्लासरूम में हमारे पास सिलेंड्रिकल फिगर के लिए चौक होता है। जब नॉर्मली हम बात करते हैं तो इस चौक में हमको क्या दिखता है? ये CSA दिखता है। 1 मिनट। नॉर्मली जब हम बात करते हैं इस चौक, दिस इज अ सिलेंड्रिकल शेप। इस सिलेंड्रिकल शेप में आपको क्या दिखता है? ये CSA इसका दिखा, आपने CSA लिखा। आपको यहाँ पे सर्किल दिखा, आप पाई आर स्क्वायर लिखे। आपको यहाँ पे सर्किल दिखा, आप पाई आर स्क्वायर लिखे। यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। बट अगर हम यहाँ पे अगर पेन से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से इसको कोड के यहाँ पे हेमिस्फीयर बना देंगे और इधर भी हेमिस्फीयर बना देंगे, तब आपको क्या दिखेगा? तब आपको दिखेगा ये CSA दिखेगा आपको,
एंड इधर जब आप देखिएगा इधर आपको हेमिस्फीयर दिखेगा और इधर भी हेमिस्फीयर दिखेगा, तो अब इस सॉलिड का टीएसए क्या होगा, सीएसए 2 पाई आर एच 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। जस्ट इमेजिन। तो आप ये समझ गए अगर सिलेंडर में ऊपर से हेमिस्फीयर है या हेमिस्फेरिकल पार्ट काट के निकाल दिया गया है, इन बोथ कंडीशन वी यूज सेम फॉर्मूला। ओके, हमने बस एक कंडीशन की डिस्कस किए हैं, वो है सिलेंडर बोथ साइड हेमिस्फीयर। वन साइड भी रह सकता है, बोथ साइड भी रह सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर मींस 2 और मोर देन 2 फिगर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड मतलब मिनिमम 2 फिगर हो सकता है, मोर देन 2 फिगर भी हो सकता है। नेक्स्ट, दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, दूसरा एग्जांपल है, दिस इज द हेमिस्फीयर एंड अपर पार्ट इज कोन। हेमिस्फीयर एंड अपर पार्ट इज कोन। बचपन में खेलते थे लट्टू, इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इन दिस फिगर। तो इसका जब हम टीएसए निकालेंगे, टीएसए ऑफ सॉलिड, इट मींस ए आपका सीएसए, तो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ कोन, it means 2 pi r square plus pi r l. CSA of hemisphere plus CSA of cone, and 2 pi r square plus pi r l. ये सेकेंड कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का हो गया। ओके, नेक्स्ट, थर्ड वन, क्यूबाइड, क्यूब, दिस इज क्यूब और इसके ऊपर हेमिस्फीयर है। क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर, देन TSA is equal to, here we not find CSA of cube because we find CSA of cube means only 4 faces. Here 5 फेस में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि क्यूब का 5 फेस हमको कंसीडर करना है। देन आफ्टर वी कंसीडर 6 फेसेस, 6 फेसेस में भी उतना ही नहीं करना है जितना बेस एरिया है हेमिस्फीयर का। इट मींस TSA of this figure is equal to TSA of cube plus, sorry, minus base area of hemisphere plus CSA of hemisphere. ओके, TSA ऑफ क्यूब तो 6 फेस हो गया, लेकिन छठा फेस में उतना दूर को हमको नहीं लेना है जितना दूर में हेमिस्फीयर रखा हुआ है, उसको माइनस कर दिए, एंड ऊपर से जब हेमिस्फीयर है तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर, यानी TSA ऑफ क्यूब माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। दिस इज द कंप्लीट, इट मींस 6 E square plus 6 E square minus pi r square plus 2 pi r square. So we are discuss combinations of some
solid figure. Next class, here we discuss the some combination of solid figure. हम लोग यहाँ पे कुछ solid figure का combination of solid figure को discuss किए और समझने का प्रयास किए कि किस तरह से हमको कितने फेस का एरिया फाइंड करना है जब कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड रहेगा तब। अब कोई जरूरी नहीं कि हमने जितना डिस्कस किया है इतना ही कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड हो। ये तो बस सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए किया गया है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर में किस तरह से हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, किस तरह से कंसीडर करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड हो सकते हैं, उसको हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में जब चैप्टर बनाएंगे जब उसमें डिस्कस करेंगे। जो पहला वर्कशीट बनाएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे, अगर सेम मिलेगा तो यूज करेंगे, अगर न्यू सरफेसेस मिलेगा, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड मिलेगा उसको डिस्कस करेंगे। जितना ज्यादा क्वेश्चंस बनाइएगा, जितना ज्यादा डिस्कस कीजिएगा उतना कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड समझ में आएगा। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, सरफेस एरिया में ही प्रॉब्लम है। क्लास 9 में भी सरफेस एरिया में ही प्रॉब्लम था कि सरफेस एरिया मतलब कितना एरिया ले, किस क्वेश्चन में सीएसए निकाले, किस क्वेश्चन में टीएसए निकाले। लेस देन 1 मिनट है आज का क्लास, बंद हो जाएगा मीन्स क्लास आज का एंड हो जाएगा। जब तक नहीं बंद होता है हम आपको बोलते चले जा रहे हैं। तो क्लास 9 में भी ये कंफ्यूजन था कि हम लोग सीएसए निकाले कि टीएसए निकाले, वॉल्यूम में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं था। इन दिस चैप्टर में भी आपको सरफेस एरिया में ही प्रॉब्लम है, यहाँ ही आपको समझाना है, समझना है, और आपको जब आप वॉल्यूम में जाइएगा तो यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सरफेस एरिया और वॉल्यूम में 3 एक्सरसाइज पढ़ना है। फर्स्ट सरफेस एरिया, सेकेंड वॉल्यूम, एंड थर्ड कन्वर्सन, यानी वन सॉलिड टू कन्वर्ट अनदर सॉलिड।